subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हेलो गाइस, मैं हूं प्रियंका चौहान और मैं आज आपको बताने वाली हूं इस हफ्ते की ऐसी खबरें जो न्यूज़ मेकर्स ऑफ द वीक बनी हैं। तो आइए देखते हैं। इस हफ्ते की सबसे पहली खबर कृति सनोन की सिस्टर नूपुर सनोन से रिलेटेड है। नूपुर सनोन अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू के लिए रेडी हैं और उन्हें लॉन्च करने वाले हैं। जैकी भगनानी और उनकी बहन दीपशिका देशमुख अपने प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट के थ्रू। पूजा एंटरटेनमेंट के एक काफी क्लोज सोर्स ने ये बात कंफर्म करी है और हमें बताया है, नूपुर showcased immense potential in her music video. Apart from having great screen presence, she has freshness and vulnerability, which impressed not just the audience but also Jackie Bhagnani. With the unanimous decision between Jackie, Deepshika and the team at Pooja Entertainment, the production house has decided to take Nupur Sanan under their wings. She will start in an in-house production soon, the details of which are yet to be finalized. Currently, she has been putting in hours in prepping and getting ready for her debut. इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर बेल बॉटम टीम से जुड़ी हुई है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम ने एक स्टेटमेंट रिलीज करते हुए अपने आप को रेप अक्यूज्ड आयुष तिवारी से अलग बताते हुए ये कंफर्म किया है कि आयुष तिवारी का बेल बॉटम टीम से कुछ लेना देना नहीं है। जी हाँ, हाल ही में एक टेलीविजन एक्ट्रेस ने कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी के ऊपर रेप के इल्ज़ाम लगाए थे। हालांकि एक्ट्रेस का नाम रिवील नहीं हुआ है, पर फिलहाल तहकीकात चालू है और ये भी कहा जा रहा था कि आयुष तिवारी अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम में काम कर रही हैं। लेकिन बेल बॉटम की टीम ने ये सारी बातें खारिज कर दी है और अपने स्टेटमेंट में ये चीज़ कंफर्म करी है कि बेल बॉटम टीम का आयुष तिवारी से कुछ लेना देना नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हुए बेल बॉटम टीम के कास्टिंग डायरेक्टर वैभव विशांत ने अपने स्टेटमेंट में बताया है, It is distressing to see the film and the names of others associated with the film being tarnished with false and unverified allegations. I am the casting director of Bell Bottom. The individual Ayush Tiwari was a freelance intern in my company and has nothing to do with the film or its casting. He has not worked on Bell Bottom in any capacity. It is extremely upsetting to see that some publications, in order to get a clickbait headline, will go to any lengths to put out uncorroborated and unsubstantiated information. This individual, Ayush Tiwari, has nothing to do with Bell Bottom. I hope the police will conduct a fair investigation and justice will be served. However, I will request media publications to correct the facts and stop linking Bell Bottom to this case. वैभव विशांत। इस हफ्ते की अगली बड़ी खबर कैलाश खेर से जुड़ी हुई है। कैलाश खेर ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बताया कि किस तरह से म्यूजिक इंडस्ट्री से परेशान उन्होंने अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की थी। कैलाश ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो एक आउटसाइडर हैं और आउटसाइडर होने के बावजूद उन्होंने आज तक जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने बलबूते पे हासिल किया है और इंडस्ट्री के कई म्यूज़िक माफिया जो कि शैडोज़ में रहते हैं, उन्होंने कैलाश को दबाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इन सब को हटाते हुए अपनी मंजिल हासिल की है। अपने स्टेटमेंट में कैलाश ने बताया, I have been through a lot since my formative years. I have been through so much of rejection that I was used to it. But all this never distracted me from what I wanted to be. The zeal and madness that I had in me manifested in what I am today. It has been 15 long years now, and by the grace of God, I am the youngest recipient of the Padma Shri Award in the field of music. Although I received it in 2017, my first nomination for this came in 2013 when a different government was in power. I had nobody, and that is what influenced me. When I came to Mumbai, I faced a lot of rejections. I was so dejected in life that I even tried to kill myself. I had lost everything and had nothing else to lose, and that is what inspired me. Here, no matter how experienced you are, how much you have learned, there is nobody to guide you. I decided that I don't want to be like them and I will not wait till I grow old to help someone else. I had promised myself that if I become successful, I will create a platform where singers will launch new singers. Here, people just encourage people from their own families. We have had a rich heritage of musicians and singers in this country, but they have done anything to encourage other talents or bring about change? No. इसके बाद एक बहुत ही मोटिवेटिंग पिक्चर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। जी हाँ, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा से जुड़ी है ये पिक्चर। अनुष्का शर्मा जो कि हेवीली प्रेग्नेंट है और सून अपने बेबी को डिलीवर करने वाली है, उन्होंने शीर्षासना करते हुए
अपनी सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो शेयर करी और उन्हें ये योगा आसन करने के लिए उनके पति विराट कोहली ने मदद की है। जैसे ही ये सोशल मीडिया पे अनुष्का ने पोस्ट किया, उनकी फ़ोटो तुरंत वायरल हो गई और सारे के सारे शॉक हो गए कि हेविली प्रेग्नेंट होने के बावजूद अनुष्का ये योगा पोस्ट कैसे पुल ऑफ किया। अपने योगा पोस्ट के बारे में बताते हुए अनुष्का ने अपनी फैंस को अपने पोस्ट के थ्रू ये बताया, दिस एक्सरसाइज इज हैंड्स डाउन एंड लेग्स अप, द मोस्ट डिफिकल्ट वन. Throwback. PS, as yoga is a big part of my life, my doctor recommended that I can do all such asana that I was doing before I was pregnant, barring twist and extreme forward bends, but of course with the appropriate and required support. For the Shirshasana, which I have been doing for many years, I ensure that I use the wall for support and also my very able husband supporting me balance to be extra safe. This was also done under the supervision of my yoga teacher, Aoife Shroff, who was virtually with me through this session. I'm so glad I could continue my practice through my pregnancy. इसके बाद एक और बड़ी खबर थी जो कि उर्मिला मातोंडकर से रिलेटेड थी। उर्मिला मातोंडकर ने हाल ही में शिवसेना ज्वाइन किया है और शिवसेना में उन्हें वेलकम करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे मौजूद थे और उसी के साथ साथ वेलकम सेरेमनी दिसंबर 1, 2020 को कंडक्ट की गई थी। शिवसेना के लीडर और राज्यसभा मेंबर संजय राउत ने उर्मिला मातोंडकर का पार्टी में ज्वाइन करते हुए स्वागत किया और ये कहा है, उर्मिला मातोंडकर may join Shiv Sena tomorrow. She is a Shiv Sainik. We are happy that she is joining the Shiv Sena. This will strengthen the party's Mahila Aghadi. The party leaders also stated that they were impressed with Urmila's take on actress Kangana Ranaut's remark amid her attack on the Maharashtra government. Party insiders have also stated that Urmila Matondkar is a well-known face nationally, has a good social connect with Maharashtra and will become an additional voice for the party on issues. इसके बाद एक और बड़ी खबर अभिषेक बच्चन से जुड़ी आई थी। अभिषेक बच्चन ने अपनी कबड्डी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के नाम से जुड़े हुए एक पर्सनल कनेक्ट का किस्सा बताते हुए उसके पीछे हिडन मैसेज रिवील किया है। जी हाँ, जयपुर पिंक पैंथर्स के पीछे उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन, उनकी बेटी आराध्या बच्चन और उनके पिताजी अमिताभ बच्चन का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। हिडन मैसेज को बताते हुए और उसके पीछे जितने भी किस्से हैं वो जुड़े हुए सब चीज़ें रिवील करते हुए अभिषेक ने कहा है, जयपुर पिंक पैंथर्स हैज़ अ वेरी पर्सनल टच विद मी. Whatever work I do in life, I feel it should have a personal connect. When I was little, my father used to call me out saying tiger. Then after a few years, I thought even I should call him something as an answer. One day when he came back home from shooting, he asked me, how are you doing, tiger? I replied, I'm fine, panther. How are you? And I was 4 to 5 years old then. Since then it became like a fun thing. He used to call me tiger, I used to call him panther. If there was an animal that we wanted to choose, I was sure that it was panther because that is how I used to call my father. Pink is my daughter Aradhya's favorite color, so I thought that pink and panther would be nice. My wife Aishwarya has worked in the film Pink Panther 2 with Steve Martin, so that's a connect to Aishwarya. Jaipur was the city Aishwarya and I came together in, so that's why Jaipur. If you see, our Pink Panther has blue-green eyes which are the same as my wife's, so there is a personal connect to everything about Jaipur Pink Panthers. इसके बाद एक और बड़ी खबर आई जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती से रिलेटेड है। शौविक जो कि सितंबर में ड्रग्स के केस से रिलेटेड जेल गए थे, उन्हें बेल पे रिहा कर दिया गया है। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने 3 महीने के बाद शौविक को बेल ग्रांट कर दी और उन्हें रिहा कर दिया। इसके बाद एक और बड़ी खबर आई है वो जो कि इमरान खान और उनकी वाइफ अवंतिका मलिक से रिलेटेड है। इमरान खान और अवंतिका काफ़ी चर्चा में रहे थे पिछले साल। उनके सेपरेशन से जुड़ी बहुत सारी रूमर्स, बहुत सारी खबरें आई थी जिसके रिलेटेड उन्होंने काफ़ी हेडलाइंस बनाई थी। और हालांकि इमरान और अवंतिका ने कभी भी ना ही तो एक्सेप्ट किया है ना ही तो डिनाई किया है उनके सेपरेशन के बारे में ओपनली या उनकी शादी के बारे में ओपनली कुछ भी कहा है, लेकिन अवंतिका अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू मैसेजेस और क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करती रहती हैं जहाँ पे वो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करती है। ऐसे ही हाल ही में अवंतिका ने एक पोस्ट शेयर किया जहाँ पे उन्होंने एक रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस पर एम्फसाइज करते हुए कहा है, When valued personal relationships go silent, trouble often follows. I'm not talking about productive timeouts that are clearly expressed. I'm talking about silence that is reactive or an attempt to do harm. This kind of silence ensures that the connection will not find its way back to health.
Because silence fosters confusion, projections, and worst of all, assumptions about what the other is feeling or thinking. And assumptions doesn't get us anywhere good. Inquiry does. Assumptions ensure that the wall will only get thicker until there is no way to reconnect. Whatever you do, even if you're justifiably angry, try to keep the door to inquiry open. You may not you may not be ready to process the experience, but allow for the possibility that you one day will. Because valued connections are hard to find in this crazy world. Anger doesn't have to be the end of the story. Sometimes it's the portal to a closer connection. Sometimes it's the way through to get great learning. Inquiry is the bridge. इसके बाद की खबर आलिया भट्ट से जुड़ी हुई है। इस लॉकडाउन के दौरान सुशांत सिंह राजपूत की अकस्मात हुई मृत्यु ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद नेपोटिज्म से जुड़े हुए बहुत सारे डिबेट्स सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे चल रहे थे, और इसी वजह से बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स को लोगों ने बहुत स्लैम किया, और आलिया भट्ट भी उनमें से एक थी जिन्हें काफ़ी स्लैमिंग मिली, काफ़ी हेट्रेड मिला सोशल मीडिया पर। उन सब चीज़ों को बताते हुए और किस तरह से आलिया ने इन सब चीज़ों से डील किया है, वो चीज़ों को बताते हुए आलिया ने रिवील किया है। The new phase of my work life will be different in taking time off and making time for them. I have realized we have to be kind to each other and to our planet. I've seen a lot of hate, and a little kindness can take you a long way. In these 8 months, I have had 2 big takeaways. The love that one should have for people in their lives, family and loved ones. When you are most vulnerable, the people you turn back to are your family and loved ones. आलिया ने ये भी कहा है कि वो बहुत ग्रेटफुल रही है अपनी फैमिली को, और इस हेट्रेड से, जितनी सारी हेट्रेड उनके खिलाफ आई थी इन 8 महीनों के दौरान, वो उन सब के वजह से उन सब से आसानी से डील कर सकती थी। इस हफ्ते की अगली बड़ी खबर फिल्म जुग जुग जियो से रिलेटेड है। अनिल कपूर, नीतू कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी और प्राजक्ता कोहली हाल ही में जुग जुग जियो की शूटिंग को रिज्यूम स्टार्ट करने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए थे। और अभी अभी रिसेंटली में ये खबर आई है कि नीतू कपूर, वरुण धवन और फिल्म के डायरेक्टर राज मेहता कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। जी हाँ, काफ़ी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बावजूद इन तीनों को कोरोना वायरस हो गया है, लेकिन अनिल कपूर कोरोना वायरस के नेगेटिव टेस्ट हुए हैं। फिल्म की शूटिंग अभी फिलहाल रोक दी गई है ताकि ये सारे एक्टर्स और डायरेक्टर अपने आप को इस वायरस से रिकवर कर सकें, और जब उनके अगले टेस्ट नेगेटिव आएंगे तो फिल्म की शूटिंग वापस शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद इस हफ्ते की आखिरी और बड़ी खबर कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर से जुड़ी हुई है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ चल रहा है फिल्म और काम के अलावा कार्तिक और जानवी की जिंदगी में। उनकी प्रोफेशनल लाइफ अभी पर्सनल बदलने जा रही है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो कार्तिक और जानवी छुप छुप कर कार्तिक के घर में मिल रहे हैं, और एक क्लोज सोर्स ने एक पब्लिशिंग हाउस को कंफर्म किया है। Janvi was recently spotted paying Karthik a visit at his residence. Reportedly, the pair managed to find a way to dodge the cameras. While Karthik posed for photos, it was reported that Janvi snuck out the back exit of the building. लॉकडाउन से पहले कार्तिक और सारा अली खान का रिलेशनशिप शुरू था, लेकिन उनकी फिल्म लव आजकल जब रिलीज हो गई थी, उसके बाद ये खबर आई थी कि कार्तिक और सारा का ब्रेकअप हो चुका है। और इसी तरह जानवी कपूर और ईशान खट्टर डेट कर रहे थे। उनकी फिल्म धड़क जब रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद जानवी और ईशान भी अपनी अपनी राह पे चले गए हैं। तो जानवी और कार्तिक का जो ये किस्सा है कितना मज़ेदार है, ये आने वाले दिन ही में बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया फोरम्स। दिस इज प्रियंका चौहान साइनिंग ऑफ फॉर नाउ फॉर इंडिया फोरम्स मुंबई। Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.